عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, میں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کافی مشکلات میں ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے ابھی 2 دن سے تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. شاید اندر انفیکشن ہو گیا یا کیا ہے. تو یہ ہے کہ اور میں کل میری اپوائنٹمنٹ تھی انڈین ویزا کے لیے, تو انہوں نے تو لمبی چوڑی لسٹ پکڑا دی کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس, یہ ایفیڈیوٹ, یہ نوٹیر سے کرا کے لائیں, یہ کرا کے لائیں. وہ لمبی چوڑی لسٹ دے دیے. ظاہر ہے یہ سارے ڈاکیومنٹس میں تیار تو کروں گا ہی, لیکن اس میں 2-3 ہفتے بھی لگ جائیں گے اور خرچہ بھی بہت ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کا نوٹیر پاؤنڈ میں چارج کرتا ہے. تو انہوں نے کہا لاسٹ ایئر کے بعد بھارت نے پاکستان بانڈ کے لیے بہت زیادہ سختی کر دی ہے, تو یہ سارے ڈاکیومنٹ تو آپ کو دینے ہی ہیں. تو اب بہرحال تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب میں یہاں پہ پرائیویٹ ڈاکٹر منڈے کے دن کوشش کروں گا کہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے, مہنگا بہت ہے یہاں پہ پرائیویٹ کا علاج, لیکن پہلے کم از کم ایک یورولوجسٹ کو ایک بار دکھا تو دوں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے. تو لیٹس سی. عزیز دوستوں, بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. ویسے تو آپ اگر یہ نقشہ دیکھیں تو یہ جو بلوچستان, کے پی, پھر آگے چلے جائیں پی او جے کے, گلگت بلتستان, یہ سب اس وقت پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہیں. اور سندھ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس وقت ایک کرائسس میں چل رہا ہے. اور سندھ میں جو انہوں نے ٹھوپے ہیں نا لوگ سر پہ, تو سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی چوروں کا سردار, اور باقی جو فیڈرل گورنمنٹ میں کراچی کے ایم کیو ایم آرمی گروپ کو منسٹریاں دی ہیں, یہ سب کی ہیں, جو کہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو دیا جائے. تو ایک عجیب سی کیوس کی کیفیت ہے سندھ میں. تو عزیز دوستوں, میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے بات کروں کہ ریپبلک آف بلوچستان کے نام سے ایک گورنمنٹ اناؤنس کی گئی ہے کہ اب بلوچستان آزاد ہے, اور ریپبلک آف بلوچستان کنٹرول کر رہی ہے 85% بلوچستان کی ٹیریٹری. تو ابھی اس وقت مالک صاحب جو حکومت کی رٹ کی بات کی جاتی ہے, جو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ وہاں تو کہا جاتا ہے کہ شام کے بعد آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے, خود حکومت کہہ رہی ہے. سر میں تو کہتا ہوں شام کو تو چھوڑو, اب دن کو ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, دیکھو ہمارے کوئی 6 کے قریب جو ہے نا راستے ہیں, وہ آلموسٹ 4 بلوچ علاقوں سے جاتی ہے, 2 پختون علاقوں سے. تو بلوچ علاقوں کے تو راستے ان کی پیرول پہ ہیں, مرضی پہ ہیں. جہاں کہیں ملیٹنٹ اس کو چائیں بند کر لیتے ہیں, تلاشی لیتے ہیں, اور اب تو گاڑیوں کو بھی نقصان دے رہے ہیں جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں, چاہے وہ باؤزر ہیں جو ایرانی سے لیگلی جو ہے نا وہ گیس کی کاروبار کرتے ہیں, یا ایران سے تیل کی کاروبار کرتے ہیں. تو اب ان کو بھی وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا سیمی بلاکیڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں وہ ایفیکٹو رول ادا نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو تحفظ دینے میں. تو باقی انٹیریئر میں جو آپ جائیں گے وہاں پہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ عبد المالک تھے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ بلوچستان کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ صاف الفاظ میں بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں رات کو کیا دن میں بھی نہیں نکل سکتے. یہی صورتحال کے پی کی بھی ہے, لیکن میں بلوچستان پہ بات کروں گا. تو بلوچستان میں واقعی سچویشن بہت خراب ہے. ایسے میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جس نے یہ ریپبلک آف بلوچستان کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہم نے ریپبلک آف بلوچستان, آپ یقین مانیں ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بلوچستان, آزاد بلوچستان کے کرنسی نوٹس بھی انہوں نے ایشو کر دیے ہیں ڈیموکریٹک ریپبلک آف بلوچستان کے نام سے. اور یہ سب جو ڈرامے کر رہے ہیں نا, یہ آج نئے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آزاد بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل بھی قائم کی گئی تھی, جس کی
प्राइम मिनिस्टर भी घोषित की गई थी। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनका बलूचिस्तान में जो इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है इनका इनसे सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बलोच अपनी जानें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिस्ट लोग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल और ये नोट छापना, और नोट तो नहीं छापे, ये ऐसी तरह डिजिटल एक वो बना के भेज दिया है सोशल मीडिया पे, ये सब ड्रामे कर रहे हैं और बलूचिस्तान की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह तहरीकों को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ये एक अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप है जिनमें आपको मैं ये भी बता दूं कि इस ग्रुप में जो नाम आ रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत हिट जा रहे हैं ये लोग, इनमें से अक्सर बलोच भी नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर घोषित की गई थी कनाडा में रहती हुई, वो यूपी से उनके माइग्रेट किया था उनके पेरेंट्स ने, तो बाद में वो प्रोफेसर बन गई तो उनको कोयटा यूनिवर्सिटी में वो मिल गया। लेकिन उनकी या उनके ख़ानदान की क्या कुर्बानियां हैं, इनके कितने लोग वहाँ पे जाने दे रहे हैं, कोई नहीं है। तो ये ऐसे ही अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो बलोच तहरीक को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान में अभी एक काफ़िला जा रहा था पाकिस्तान आर्मी का, बसें थीं उसमें, उस पूरे काफ़िले पे हमला हुआ है। कहते तो ये हैं कि 45 लोग उसमें 45 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। BLA ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है, लेकिन इतने बड़े कन्वॉय के ऊपर जो हमला हुआ है वो 45 तो कम लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये एक है। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक किस तरह, मतलब बारूद का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बलोच, बाकायदा अपनी जानों का नजराना भी दे रहे हैं। और आप देखें किस तरह धमाके कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, चेक पोस्टों पे हमला कर रहे हैं, कॉन्वॉइस पे हमला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बलोच क्रांतिकारी जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस, फौज या इनके क्रिएटेड जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में बलोच क्रांतिकारियों की मूवमेंट को या उनकी जो अटैक्स हैं या उनको मलाइन करने के लिए वहाँ पे कई टेररिस्ट ग्रुप भी छोड़ रखे हैं, जिनमें रमज़ान मेंगल नाम का एक आदमी है, मौलवी है, वो उसको काफ़ी प्रोमोट किया गया है और उसने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और वो बलोच लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इस तरह, ताकि ये है कि ये तहरीक बदनाम हो। लेकिन ऐसा नहीं है। रमज़ान मेंगल के ग्रुप में आईसिस, दाइश के भी कई लोग हैं और ये एक प्योर टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान आर्मी ने प्रोमोट किया हुआ है। अजीज़ दोस्तों, पिछले दिनों मेरा ख्याल है लास्ट वीक की बात है कि बलोच क्रांतिकारियों ने रमज़ान मेंगल के जो ट्रेनिंग कैंप है जहाँ पे टेररिस्टों को वो ट्रेनिंग देते हैं और रखते हैं, वहाँ पे हमला किया। रमज़ान मेंगल तो बच गया, लेकिन क्रांतिकारियों ने उसके काफ़ी टेररिस्टों को मारा और नुकसान पहुँचाया है। तो ये है कि अब अभी जो मैंने आपको बस का बताया कि किस तरह कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था, तो BLA कह रहे हैं ये है कि मास्तूंग बलूचिस्तान में 750 फौजी एक कन्वॉय में जा रहे थे और यह है कि 50 के करीब तो मारे गए हैं। तो ये इस वक्त बलूचिस्तान की बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। इसके अलावा भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। अजीज़ दोस्तों, साथ ही मैं आपको थोड़ा मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनकी भी अपडेट दे दूं। कोई नोटिस नहीं भेजा, जरूरत भी नहीं हो सकती, जरूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, न खंजर उठेगा न तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आए मैदान में अब खुली जंग है, तबले जंग बच चुका है, अब कोई परवाह नहीं है। कोई लेटर आता है, कोई नोटिस आता है, क्यों फेंक देंगे पुर्जे की तरह? क्या हैसियत है उसकी? एक दफा नहीं मानना तो फिर नहीं मानना, जब मैदान में है तो फिर मैदान में है।
फिर हमने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी नहीं माना, परवाह नहीं की, और जब जनरल मुशर्रफ ने हमें अमेरिका के हाथों बेचा तो फिर मैदान में हम खड़े थे और जेलों में गए, लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं की। हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हम गुलामी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मेरे अकाबिर और असलाफ की तारीख आज़ादी के लिए जंग है, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, एंकर जो है वो मैदान में चीख रहे हैं हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। क्या जुर्म किया है? मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों की एक ड्यूटी है मेरी बात कौम तक पहुँचाने के लिए। अभी आप मेरे से जाएंगे, पाबंदी लगा दी जाएगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं करना। क्या आज़ादी है? और इस सहाफ़ती आज़ादी की जंग आपने लड़नी है, हम आपके साथ होंगे। देखें, कई लोग कह रहे हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई वाले, कि मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्च किया है एक फिक्स्ड मैच के लिए आर्मी ने, ताकि वो थोड़ा आर्मी के खिलाफ गुस्सा दिखा के और वो करके पख्तूनों को अपनी साइड पे ले लें। आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान भी पख्तून हैं और वो अपना बलूचिस्तान के पख्तून एरियाज़ में और केपी में अपना एक वोट बैंक भी रखते हैं। तो पीटीआई जो कि केपी में रूल कर रही है, उसको कमज़ोर करने के लिए और पख्तूनों को इस तरफ लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को आगे किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक झगड़ा तो है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग अब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के दादा है ना, वो अफ़गानिस्तान से इंडिया आए थे, ब्रिटिश इंडिया में, और यानी केपी में, और ये अफ़गान है, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो जवाब में मौलाना के लोगों ने कहा कि भाई साहब, आपने जो मिसाइल बनाए हैं उनके नाम तो रखे हैं आपने अब्दाली, अफ़गान डाकू अहमद शाह अब्दाली के नाम पे, अफ़गान डाकू महमूद गजनवी के नाम पे आपने गजनवी में मिसाइल बनाए हैं, अफ़गान डाकू गौरी के नाम पे आपने गौरी मिसाइल बनाए हैं। तो आप इन नामों को क्यों रख रहे हैं अपने मिसाइलों के नाम, अगर अफ़गानिस्तान का आए हुए लोग आपको पसंद नहीं? और अफ़गानिस्तान से तो बेशुमार लोग ब्रिटिश इंडिया में आए थे। तो आज इंडिया में जो ये खान पठान नाम चल रहा है, ये सब कहाँ से आए थे? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया से पहले ये जो पाकिस्तान का केपी है, ये भी अफ़गानिस्तान का एरिया था, पूरा पख्तून एक अफ़गानिस्तान का एरिया था। तो ये सब जैसे सैफ अली खान के जो एंसेस्टर थे, वो भी तो आए थे इधर से ही। तो वो मतलब उस वक्त का हालात थे, आज वो पाकिस्तानी हैं। याद रखो, हमने फतवा जारी कर दिया है। मैं 5 लाख उलमाए किराम, मुस्तनद और जय्यद उलमाए किराम की रहनुमाई और उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि ये हुकूमत मुनकर है और इस मुनकर का खात्मा हर पाकिस्तानी मुसलमान पर वाजिब है। मौलाना साहब के साथ अब ये अहमद महमूद खान अचकज़ई हैं, ये भी शामिल हो गए हैं। ये कह रहे हैं हम अफ़गान थे और अफ़गान रहेंगे। महमूद खान अचकज़ई है ना, वो बलूचिस्तान के पख्तूनों पे काफ़ी असर रखते हैं, वहाँ से सीटें जीतते हैं और वहाँ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इस वक्त है ना एक अजीब पठानों के हवाले से एक अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ पीटीआई है, एक तरफ टीटीपी है, एक तरफ एएनपी है, एक तरफ पीटीएम है। ऐसे में महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान को आगे किस हिसाब से चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, ये किसी को पता नहीं है। तो अगर जुर्रत है फिर ज़रा मौलाना के खिलाफ पर्चा दो, तो क्यों नहीं दो? अगर मौलाना साहब रियासत के खिलाफ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के खिलाफ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? कि क्या गेम चल रहा है और क्या इसका ये है कि आगे गेम प्लान क्या है, ये आगे देखना होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त बलोच और पख्तून एरियाज़ हैं ना पूरे पाकिस्तान के, जो केपी और बलूचिस्तान, और वो इस वक्त हालत जंग में हैं और पाकिस्तान आर्मी के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, ऐसी सारी सिचुएशन में यह है कि पाकिस्तान आर्मी अपना कंट्रोल लूज़ कर रही है इस पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, और किस तरह आगे चीज़ें बढ़ेंगी ये देखना होगा। पाकिस्तान आर्मी के जनरल शाहिद अजीज़ रिटायर्ड ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो बयान दिया है,
मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया था कि फ़ौजी जो मरता है तो वो तो सैलरी के लिए जंग लड़ता है, सैलरी के लिए फ़ौज ज्वाइन करता है, तो वो कौन सा एहसान कर रहा है, तनख्वाह लेता है, वो अपनी सैलरी लेता है लड़ने के लिए। तो उस पर काफ़ी लोग शोर कर रहे हैं कि आपने शहदा की बेइज्जती की है और ये और वो है। तो उस पर जनरल शाहिद अजीज़ का एक पुराना प्रोग्राम आजकल वायरल है, उसमें उसने कहा कि हमने अपने 600 फौजियों की लाशें कारगिल में छोड़ के भागे थे और हमने वो लाशें भी लेने से कबूल नहीं किया। मौलाना ने क्या बेइज्जती की है, आपने जो बेइज्जती की अपने फौजियों की और फौज की, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज जिनमें से मुशर्रफ ने सबकी कहा, बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी और आप ये कहते भी हैं सुनी वापस सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअल्टीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम? तो वाकई अजीज़ दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान आर्मी में जो फ़ौजी है ना, उसके हवाले से फ़ौज के जनरलों ने हमेशा उनको बल्ली का बकरा बनाया है और ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल मेरी बात फैज सुन- आपसे राब्ते में मेरी थे? बात पूरी सुन लीजिए। तो अब उस वक्त अगर मैं फिर इनकार करता तो कहते कि फजल रहमान ने इमरान खान को बचा लिया। तो ये वो चीज़ें थी कि मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि तारीख के औराक पर हक़ाइक़ तो किसी वक्त आए नहीं। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के पीटीआई से और एमकेएम और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी? पार्टियां, और और का नाम मत लें आप। और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने सब कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज अमीर साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी आप उसके ऊपर। वाकई सही सहाफ़ी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। तो फिर तो इनको मज़ा पीडीएम को जो कुछ फिर मुश्किलात पेश आई हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज पेश आई हैं, फिर तो आई थिंक पीएमएलएन डिजर्व करती है कि इनको जो कुछ हुआ। इकोनॉमिक जो डिफ़िकल्टीज आई हैं तो यही कहा जा रहा है बतौर दलील के कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो 1.5 साल में डिलीवर नहीं कर सकी और महंगाई कम नहीं कर सकी, बढ़ती चली गई। डॉलर की कीमत जो है वो ये तो रियलिटी है सर, आपको ऐसा नहीं लगता? लेकिन मैं जो मेरा जो मुकदमा है वो ये है कि फिर इसका असर तो पंजाब में होना चाहिए था, फिर इसका असर तो सिंध में होना चाहिए था। इसे केपी के अंदर हमारे ऊपर क्यों बम छोड़ा गया और हमें उसका निशाना क्यों बनाया गया? आपके ऊपर एक तो वो जो दहशतगर्द हमलों का इशू था वो भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया। हजरत उसने तो हमें हमारे तो उम्मीदवार घर से ही नहीं कर सकते। लेकिन कितने हमारे इन दिनों में शहीद नून लीग वाला हुए। मसला अभी मैं समझ नहीं पाया सर, आपसे मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत चाहता हूँ। पंजाब में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, मैंने तकरीबन सारे पंजाब के हलकों में गया। एक तासुर बड़ा मौजूद था कि महंगाई की वजह से अनपॉपुलर है पीएमएलएन, इस दफ़ा वोट उसको नहीं मिलेगा, और पीटीआई के लिए सपोर्ट मौजूद थी पंजाब के अंदर। जो भी गड़बड़ें हुई उसके बावजूद नून लीग लीडिंग पोजीशन में नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है। शहबाज शरीफ ऊपर कैसे आए पीएमएलएन की चॉइस में एज प्राइम मिनिस्टर? थोड़ी सी इसकी रोशनी डालें। इससे मैं लाताल्लुक़ हूँ क्योंकि मैं अपना एक पोजीशन ले चुका हूँ कल, और अब मैं इन बातों पर कौन डिस्कस करूँ, इन पर क्यों मैं फरीक बनूँ। ये अब इनका मसला, जो हुकूमतें बनाना चाहते हैं बना रहे हैं, वो दोस्त भी तलाश कर रहे हैं, वो वोट भी तलाश कर रहे हैं, और वो इसी रास्ते पे अब चलेंगे, काम करेंगे। मुझे इससे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आपसे रब्ता किया उन्होंने? रब्ता किया, तशरीफ लाए थे शहबाज शरीफ। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा जी आप अपोजिशन में बैठे, हक तो ये है। फिर उन्होंने जवाब क्या दिया? चले गए बगैर जवाब दिए। जी। नवाज शरीफ साहब ने आपको कॉल नहीं किया? नहीं।